Hi guys, the topic that we shall study today under the kingdom Plantae is your division Algae, right? So हम लोगों को ये पता है कि the phylum word is used for animals, the kingdom Animalia divisions, and the word division we use for the subcategories under the kingdom Plantae. So we are going to study the division Algae. तो एल्गी क्या होती हैं? एल्गी आर द क्लोरोफिल बियरिंग. देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम गोइंग टू अंडरलाइन, आई एम गोइंग टू हाईलाइट और आई एम गोइंग टू रिपीट 2 or 3 times. You are going to learn it because those characteristics are to be on your tips because it is very essential, right? MCQs बहुत पूछे जाते हैं इससे. Okay, then this is algae are chlorophyll bearing, simple, thyroid, autotrophic and largely aquatic organisms, right? देखो किसी भी किंगडम में, जैसे हमने प्लांटी की बात करी, वी टॉक अबाउट प्लांटी, एल्गी आर द मोस्ट प्रिमिटिव वन, right? And therefore they are going to be found in your oceans, in your rivers, but not on the land, right? क्योंकि we know that the life originated from sea, from a water body, so they are going to be aquatic. The primitive ones are always going to be aquatic, as you see in your case of your kingdom Animalia. It have your kingdom phylum Porifera, the first phylum, which is the most primitive, and the animals are found in our aquatic medium only, right? That includes your sponges and all. So सबसे पहले हमारा एल्गी जो मोस्ट प्रिमिटिव डिवीजन है, दैट इज a chlorophyll bearing, right? That has chlorophyll. It is simple क्योंकि there is not much complexity because of being primitive. तो कोई complexity नहीं है primitive organism में, इसलिए बहुत ही simple होगा. chlorophyll bearing है, थाइलॉइड स्ट्रक्चर है, कोई स्टेम्प रूट्स ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है. नो रूट्स, नो स्टेम्स आर प्रेजेंट, राइट? So there it is a thyroid structure. Then when we talk about the autotrophic mode, क्योंकि इसके पास chlorophyll है, तो with the help of photosynthesis it is able to synthesize its own food. So it is able to synthesize its own food, and hence it is termed as autotrophic. And as it is most primitive, so it is found in the aquatic regions. So what are the characteristics that you need to revise? Algae are your chlorophyll bearing, simple, thyroid, autotrophic and largely aquatic organisms. Aquatic means they are found in both fresh water and your marine water. Then they occur in a variety of habitat. It may be a moist stone, जहाँ पे water है, soils, wood. Some of them also occurs in association with fungi or such as lichen and animals such as on the slot of pier. तो बहुत सारी हैबिटेट्स हैं, तो उसमें वो मॉइस्ट स्टोन के ऊपर या सॉइल पर, या इट कैन बी एन अ वुड, या some are also found in forming the association with some fungus, or in the case of animal fungi का example क्या है, association with lichen. In animals it is the example which is given is on sloth of, in sloth bear के association में लोग present होती हैं. So these were some characteristics. Let's study more characteristics, right? So this is the form and size of algae is highly variable. मोस्ट प्रिमिटिव है तो इसका साइज, इसके फॉर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं. देयर इज़ नो पर्टिकुलर टाइप ऑफ, बिकॉज इट इज़ अ थाइलॉइड स्ट्रक्चर. इट इज़ नाइदर हैविंग अ रूट नॉर अ शूट, राइट? सो so it is having a variety of forms and is of variety of size, ranging from colonial form like volvox to a filamentous form like Locthrix and Spirogyra. A few
of the marine forms such as scalps and massive plant bodies. ठीक है, तो कॉलोनीज़ में जो इसके एग्जाम्पल हैं आपके एल्गी के एग्जाम्पल इंक्लूड करते हैं आपके वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, इलॉक्थ्रिक्स. तो ये सब क्या है, जो हमारा वॉलवॉक्स है, द वॉलवॉक्स is present in a colonial form. And when we talk about your Eulocthrix and Spirogyra, they both are present in the form of filaments. So दो different forms से ऐसे ही पता चल गए. When we talk about the kelps, they are also in the category of they are also kept in the category of algae, and they are the marine forms, right? So तीन different forms में ऐसे के ऐसे मिल गई, right? If you will go on further studying out this division in detail, you would be getting many other forms too, right? Then they talk you about then they say you that the algae produced by वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड, तो तीनों मेथड से वो ग्रो करती है. ठीक है, वेजिटेटिव. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन की मदद से हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ एल्गी. अभी फ्रेगमेंटेशन क्या है, जो हमारी एल्गी होती है, तो व्हाट हैपेंस अगर इट गेट्स ब्रोकन डाउन फ्रॉम एनी प्लेस, सो दैट फ्रेगमेंट जो ब्रोक डाउन हुआ है वो पूरा नया थैलस बना देगा, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस सेज दैट ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू अ थैलस. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ थायलॉइड स्ट्रक्चर, नो रूट, नो शूट. Asexual reproduction is by the production of different type of spores. स्पोर्स की हेल्प से होता है. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन स्पोर्स दैट वी फाइंड इन केस ऑफ एल्गी, asexual mode of reproduction is your zoospores. ये बहुत important है, याद रखना, right? So it is your zoospores. So they are flagellated, motile, and on germination give rise to a new plants. तो ये zoospores होते क्या हैं? तो zoospores जो हैं हमारी flagellated स्पोर्स होते हैं दैट कंटेन्स योर फ्लैजिला. से ये है 2 फ्लैजिला होते हैं. ये होगा हमारा ज़ूस्पोर. इट इज़ हैविंग फ्लैजिला बिकॉज ऑफ विच इट इज़ एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? एंड when they are able to move from one place to another place, and जब वो germinate करते हैं, when these spores get germinated, they lead to the formation of new plant. डायरेक्ट न्यू प्लांट ही बना देते हैं. तो ये डायरेक्ट हमारा कौन सा मोड हो गया? दिस इज asexual mode of reproduction. Then they talk about the sexual mode of reproduction. So it takes place through fusion of two gametes. अब इसमें हमारे इन द केस ऑफ एल्गी, इसमें भी गैमेट फ्यूजन तो हुआ, लेकिन गैमेट्स भी वो डिफरेंट टाइप के हो गए. 3 टाइप्स के गैमेट्स हो गए हमारे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड योर oogamous, राइट? इन केस ऑफ आइसोगैमस कौन से होते हैं? इन केस ऑफ आइसोगैमस इट इज़ बोथ द गैमेट्स आर योर सेम साइज. सो लेट्स अंडरस्टैंड. एनाइसोगैमस में डिफरेंट साइज़ के होते हैं. oogamous में एक लार्ज होता है और दूसरा स्मॉल होता है. लार्ज वाला मेल होता है, मोटाइल होता है, सॉरी लार्ज वाला फीमेल होता है, इमोटाइल होता है, और दूसरा वाला जो छोटा होता है दैट इज़ मोटाइल एंड इज़ योर मेल गैमेट, राइट? सो एज इट इज़ स्टेटेड दैट these gametes can be flagellated and similar in size as in case of Eulocthrix. Eulocthrix के केस में उनका साइज सेम होता है and they are flagellated, right? ये याद रखना कि किसके केस में कैसा गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, right? because it is very 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 important. आप लोग BSc करोगे, आगे जब पढ़ोगे आपको तब भी ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे. आप चाहे नॉर्मल BSc करो, चाहे बायोटेक से करो या किसी और ब्रांच से करो, यू आर गोइंग टू स्टडी इट, राइट? सो यू शुड रिमेंबर इट. ऑल्सो इट इज़ वेरी एसेंशियल इन द एक्सटर्नल एग्जाम्स, राइट? सो
where we were. Yes, the flagellated, the gametes may be flagellated and similar in size as in case of Phylloxera, or it may be non-flagellated, that because of presence of flagella या flagella जब present नहीं होगा then they would not be able to move, so non-motile but similar in size as in case of Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. तो isogamous reproduction कौन सा हो गया? So here this sexual reproduction is divided into three categories: isogamous, your anisogamous and your oogamous, right? तो ये तीन categories में divided है. तो इसमें क्या बोलता है? Eulochrix, in case of your Eulochrix and your Spirogyra, both are having similar size of spores, but the difference is in case of Eulochrix it is flagellated similar size and in case of Spirogyra it is non-flagellated. मतलब एक में मूव कर सकते हैं, एक पे मूव नहीं कर सकते. Just to be kept in mind. So this type of reproduction जहाँ पे हमारे जो दोनों gametes हैं they are of same size. जब same size के हैं so it is your what is your isogamous. iso मतलब same होता है ना, gamus मतलब gametes, तो isogamous मतलब same gametes, same size के gametes जो होंगे हमारे वो हो गए हमारे isogamous. Then the fusion of two gametes of dissimilar size. जब जो हमारे gametes हैं they are of dissimilar size, they are not of same size, तो उस टाइप के फ्यूजन को हम लोग टर्म करेंगे एज anisogamous. तो उसको हम लोग टर्म करेंगे एज anisogamous. Then when we talk about the fusion between one large non-motile, that is a static female gamete and a small motile male gamete, then the reproduction is termed as your oogamous. एक चीज़ मैं भूल गई, this anisogamous reproduction occurs in case of Eudornia, right? ये एग्जाम्पल्स याद रखना तीनों के. अगर डिफरेंस आता है तो एग्जाम्पल्स आप लोग लास्ट में दे दीजिएगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. देन व्हेन वी टॉक अबाउट योर दिस oogamous reproduction, it says कि आपके पास एक see, just wait a minute. Yes, you are having, sorry, so you are having one large, I'm making both a circle way, but it may be a circle, it may not be a circle, so उसको for grant मतलब उसको seriously मत लेना. I'm just giving you an example, right? So suppose this is your large gamete, this is your small gamete, right? दोनों जो gamete हैं आपके वो क्या हैं? Dissimilar size के हैं. So you would think that I should keep it an anisogamous. लेकिन anisogamous and in case of oogamous there is some difference that includes your oogamous says that one large non-motile, मतलब ये वाला जो है जो आपका large वाला है, this is non-motile, it is not able to move, it is not able to move, it is large, and also it is a female gamete, it's a female gamete which is non-motile. But when we talk about the second one which is your small one, so it may have flagella. I'm saying may, I'm not saying it should have, I'm saying it may, but ये movable होते हैं, they are motile, they are able to move, and also they are male gametes, right? So ये हो गया हमारा oogamous का. अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि लार्ज वाला मोटाइल होगा या स्मॉल वाला मोटाइल होगा, तो आप अगर नेचुरल लाइफ से रिलेट करके देखो तो यू कुड आस्क फॉर जो छोटे बच्चे होते हैं वो इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर
they keep on moving, right? So they're having lot of energy and they're going to waste it definitely, right? So that by that a small fast मतलब स्मॉल जो है उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, मूव करते रहते हैं, राइट. बट जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है. तो व्हाट हैपन्स, दे आर मोस्टली सिटिंग एट अ प्लेस, राइट, दे आर नॉट मूविंग हेयर एंड देयर सो मच. सो दिस यू मे टेक एन एग्जाम्पल, राइट, कि जो छोटा वाला गैमेट है वो मूव करता है और जो बड़ा गैमेट है वो एक जगह पे बैठा रहता है. सो इन दैट वे यू माइट लर्न, राइट. सो अब इसके एग्जाम्पल की बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट सेज यू दैट oogamous इज परफॉर्म्ड बाय योर वॉल्वॉक्स एंड योर फ्यूकस. तो हमने पूछा आइसोगैमस किसने परफॉर्म किया था. इट वॉज योर स्पायरोगायरा एंड योर Eulocthrix and your Spirogyra. When we talk about your Anisogamous, it was your Eudornia. When we talk about your Oogamous type of reproduction, it was performed by Volvox and Fucus. तो तीनों के एग्जाम्पल याद हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ तक याद हुई हैं. उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेट्स सी. अच्छा, फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट यहाँ से ये इतना जो तीन पैरा दिए हैं, दैट इज़ लर्न. लेट्स रिवाइज. एल्गी ऑलवेज आर क्लोरोफिल बियरिंग, थाइलॉइड स्ट्रक्चर, दे आर सिंपल, ऑटोट्रॉफिक एंड आर लार्जली एक्वेटिक, राइट. सेकेंड थिंग, उनके हैबिटेट्स और फॉर्म्स वेरी करते हैं, सच एज the form may be filamentous like in case of volvox, as in case of Eulocthrix and Spirogyra. And when we talk about the colonial form, it is your volvox. When we talk about kelps, it is your marine form. Then the reproduction is of all the three types: vegetative, asexual and sexual reproduction. Vegetative by fragmentation and asexual by your formation of zoospores, which are flagellated spores and are motile, and on germination they give rise to a new plant body. And then when we talk about your sexual reproduction, it is by three methods. 3 types of gametes are involved. गैमेटिक फ्यूजन होता है, लेकिन किस 3 टाइप्स के होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कौन से? इट मे बी एन आइसोगैमस, oogamous या एन आइसोगैमस. आइसोगैमस में सेम टाइप के होते हैं और सेम साइज़ के होते हैं आपके गैमेट्स. एन आइसोगैमस में डिफरेंट साइज़ के होते हैं, oogamous में डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जिसमें से एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है और दूसरे में एक मोटाइल स्मॉल एंड मेल गैमेट होता है. आइसोगैमस का एग्जांपल यूरोक्थिक्स एंड स्पायरोगायरा. यूरोक्थिक्स में जो होता है फ्लैजिला होता है, स्पायरोगायरा में फ्लैजिला नहीं होता है. when we talk about your anisogamous, it is your Eudornia, and when we talk about your oogamous, it is your volvox and your fucus. उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ये वाला जो दिख रहा है, this one, this is your volvox, right? You would see that they are present in a form of colonies. तो ये तो आ गया आपका, ये हो गया अगर हम एक पे कॉन्सेंट्रेट करें, राइट. सो इसको यहाँ रखते हैं. सो देखो ये अंदर वाले जो कोला है, दिस वन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर डॉटर कॉलोनी. क्योंकि अगर आप ये पूरा जो है ना, ये पूरा ही वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है. इट इज़ नॉट अ सिंपल वॉल्वॉक्स. जो ये होते हैं ना, ये ग्रीन वाले, ठीक है, ये ग्रीन वाला एक वॉल्वॉक्स है, बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन योर colonial form.
सो ये जो पूरा जो ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े डॉट्स दिख रहे हैं उनके थ्रू जो नेट कनेक्शन हुए हैं वो पूरा जो बॉल दिख रही है दैट इज़ फुल पेरेंट कॉलोनी, दैट इज़ फुल द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द इनर वन, ठीक है, अगर आप अंदर देखो इसके तो ऐसे ही इसी टाइप की छोटी छोटी बॉल से ध्यान से देखो अगर तो. सो दैट इज़ योर डॉटर कॉलोनी, राइट. तो अंदर साइड में आपकी क्या है, आपकी डॉटर कॉलोनीज हैं एंड दिस होल इज योर पेरेंटल कॉलोनी, राइट. सो दिस इज योर वॉल बॉक्स. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारे स्पायरोकायरा, ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने डिविजन्स दिखाई हैं आपकी तीनों टाइप की. ये हो गया हमारा स्पायरोकायरा क्लोरोफिल बियरिंग. सो इट इज़ व्हाट, दिस इज़ योर, सॉरी, दिस इज़ योर स्पायरोकायरा, राइट. इस चैप्टर को बोरिंग करके मत पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा. और इसे लर्न करने में हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन अगर आप बार बार रिपीट करके पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी इजी. फ्लो चार्ट बना लो, टेबल बना लो याद करने के लिए. स्मॉल जितना छोटा करके याद कर सको उतना ही ईजी है, लेकिन कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए. तो ये आपकी स्पायरोकायरा हो गई. तो अब जो ये किंगडम ये जो डिवीजन एल की है, दिस डिवीजन एल की इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. योर क्लोरोफाइसी, मेनली इट इज़ योर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड योर रोडोफाइसी. ओके, और भी है लेकिन हम लोग बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये हो गया हमारा क्लोरोफाइसी, ग्रीन पिगमेंट वियरिंग. ये हो गया हमारा फियोफाइसी, ब्राउन कलर्ड एल्गी. और जो रेड वाली होगी वो हमारा रोडोफाइसी होगी. तो अब देखो इसी में यू आर एबल टू सी ए स्ट्राइप, अ होल्ड फास्ट एंड अ फ्रंट, बट यू आर नॉट एबल टू सी एनी शूट एंड एनी शूट. और बेसिकली इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी अगर देखोगे तो ग्रीन एल्गी में तो ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, ठीक. अब देखो ये कॉलोनियल फॉर्म में था, ये फिलामेंटस फॉर्म में, ठीक है. हम गोइंग टू शो यू. फिर वी हैव गैलेडियम एंड ग्लेसिलेरी, सॉरी, पोरफायरा एंड पॉलीफोनिया.